Good morning, students. So today we are going Good to. morning, ma'am. Good morning. Today we are going to Ma'am, start. today is my birthday. Okay, Anahat, happy birthday. So Thank you, ma'am. today we are going to start our maths class with the activities of convergent sums. Okay. In the last class we did convergent sums, है ना? Last class में भी हमने convergent sums सीखे थे, and we did activities related to that. Today again we will do activities related to convergent sums. Okay. So see first question on your slide. Okay. Now I'm giving you 1 minute. You have to write in the chat box the answer of first question. 14 meters, 60 centimeters. You have to change them. You have to convert them into centimeters. Mahin has given the answer. Madhav, I am not telling you clock. I am telling you about convergent sums. Manya, good. Manya, you haven't put unit. आपने सेंटीमीटर नहीं लिखे हैं. हर्षप्रीत, भावेश, सुखराज, अरमान, अभव, निर्मित. Good. Everyone has to write answer in the chat box. All are writing correct answer. Good. 1460. Good. Hanji. Very nice. So, when we will convert 14 meter and 60 centimeters into centimeters, we will get the answer 1460. That means पहले हम 14 meters को centimeters में convert करेंगे, वो हो जाएगा 1400. फिर हम उसमें add कर देंगे 60 centimeters. And we will get 1460 centimeters. Kyan, Rudraksh, Manya, Madhav, Japleen all have given correct answer. Write fast. अभी भी मुझे सभी बच्चों के आंसर्स नहीं आए हैं. जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए. वेरी गुड. निहारिका, अरमान, सात्विक, राध्या, साहिबप्रीत, आयुष्मान. बेटा राइट सेंटीमीटर ऑल्सो. You have to write the unit also. Sukhraj, good. Harshika, very good. Only you have to write the answer of only that question which I am asking you to write. जैसे मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन का ही आंसर लिखना है. Got it? अन्वी, पलिका, हरकीरत, आयुष्मान, मान्या, sorry, Arman Verma. Very good. So all have written 1460 centimeters. Now write the answer of second question, that is 40 meters and 20 centimeters. Sahib Jyot, Manya. बेटा जो यूनिट आपने लिखना है ना, that you will write in small letters. Okay, not in capital. Nirmit, Abhav, Mahiraj, Mahin, Arman, Manya, Harkirat, Hardaman, Tanya, Harshana, Radhya, Sukhraj. बेटा I have asked you to write the answer of second question. पता नहीं आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर लिख दिया. साहिब, साहिबप्रीत, नव्या, रिद्धि, रितु, मान्या, पलिका, सात्विक, तनवीर, जपीन, Kyan, Sukhraj, good. Everyone has given correct answer. So the correct answer is 40 meters को हम convert करेंगे centimeters में. तो 40 के साथ 2 zeros आ जाएंगी, बन गया 4000. और उसमें हम add कर देंगे 20 centimeters को, and we will get 4020 centimeters. ठीक है? जपलीन, आयुष्मान, साहिबप्रीत, all are giving correct answer. Very nice. Now next is 5 meters 40 centimeters. Anish, Nirmit, Abhav, Rudraksh, Sahibjot, Riddhi, Mahin, Sahibpreet,
वेरी गुड, आप सबने तो बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ लिया है, वेरी नाइस। भावेश, तनवीर, बेटा 820, ओके यू हैव रिटन द आंसर ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन। सात्विक, जपलीन, तान्या, समृद्धि, माधव, रितु सैनी, आई थिंक इट्स सरगुन, सरगुन रीनेम योरसेल्फ बेटा, निहारिका, सुखराज, कियान, Japleen, Jasraj, Jasroop has written next question's answer. Good. Harkirat, Navya, Harshana, Sahibpreet, Madhav. Very good. All are giving correct answer. So we have to convert 5 meters 40 centimeters into centimeters, है ना? तो हम क्या करेंगे, हम 5 meters को centimeters में कैसे convert करेंगे, उसके साथ 2 zeros लगी, वो 500 बन गया, है ना? 500 centimeters plus 40 centimeters, तो हो गया 540 centimeters. And beta you have to put unit at the end, otherwise we will not be able to know if it is centimeters or meters. Okay. Now write the answer of fourth question, 8 meters and 20 centimeters. Sanvi, Anish, Abhav, Anahat, Sahibjot, Mahin, Satvik, Japleen, Manya, Tanveer, Hitanshi. Hitanshi, you have written answer of previous question. Samriddhi, Madhvi, Harkirat, Madhav, Radha, Bhavesh, Hardaman, Ritu Saini, Sahibpreet, Harshpreet, Sahib Singh, Himmat Singh, Japleen, Ayushman, Dhankor, Navya. All have given correct answer. Hitanshi, Sukhraj. Very nice. Harshana, Panav. All are giving correct answer. Riddhi also, Niharika. Good. So the answer is 820 centimeters. Okay. Now next is convert into meters. अभी हमने centimeters में करा था ना convert. Now you will convert it into meters and centimeters. Okay. You have to write here meters and centimeters. ठीक है? अभी आपने chat box में लिखने हैं आंसर. First question is 3,460 meters. Please mute yourself. Mute yourself. हाँ जी. Now you have to convert into meters and centimeters. मैंने centimeters top पे नहीं लिखा है, but you have to convert into meters and centimeters. Very good Abhav. हाँ जी. What we do जब हमें centimeters given है, हम क्या करते हैं, centimeters में 2 zeros होते हैं, 100 होता है 2 zeros होती है ना, तो हम लास्ट के 2 digits को क्या लेंगे, centimeters, और उसके आगे जो भी digit बचा वो क्या हो गया, meter. साहिब, good. Very good. Sahibpreet, Samriddhi, Sargun, Anshika, Bhavesh, Radhya, Nirmit, Harsirat, Hitanshi, Jasroop, Satvik, Anshika, Mahiraj, Anish, Rudraksh, Manya, Mahin, Japleen. Very good. Tanya, very nice. Sanvi, beta, it's not 609. It's 60 only. 60 centimeters. Ayushman, it's 60 centimeters. Ayushman, you have written 50. Arman, Sukhraj, Dhankor, Navya, very good. All have given correct answer. Very good. Now let's move to the second question, that is 4,570 centimeters. Hanji. Very good. Manya, Anish, Nirmit, Samriddhi, Nihar, Satvik, Radhya, Mahin, Riddhi, Arman, Anshika. Very nice. All are giving correct answer. So, second question is 4,570 centimeters. So what we will do, last 2 digits will be centimeters, है ना, and rest of the digits will be meters. Now 45 meters and 70 centimeters. Good.
बट ऑन नोटबुक यू नो देयर आर 3 स्टेप्स. आपने वो 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं नोटबुक में. ठीक है, जब हम नोटबुक में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब हमने वो 3 स्टेप्स सॉल्व लिखने हैं नोटबुक पे. अभी हम इनको ओरली कर रहे हैं, तो अभी आपको एग्जैक्टली माइंड में आप इनको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, है ना. नाउ नेक्स्ट इज 690 सेंटीमीटर्स. यस मैम मैं कॉपी पे लिख रही हूँ जो आप क्लास ये जो आप करवा रहे हो. क्या मैम हम इन्हें कॉपी पे भी सॉल्व कर सकते हैं? बेटा कर सकते हो. यस कर सकते हो. बट बाय डूइंग दिस एक्टिविटी आई एम मेकिंग यू ट्रेन इन डूइंग इट ओरली. मैं चाहती हूँ कि आपको जब ऐसे कोई भी बताए कि 3460 सेंटीमीटर्स को मीटर सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करो, ये हम क्यों कर रहे हैं एक्टिविटीज, ताकि आप ओरली परफेक्ट हो जाओ, तभी आप फटाफट से आप बता सको. ठीक है मैम मेरे को मीन्स के फटाफट में भी बताने आता है, बट मम्मा ने सिखाया हुआ है कि कॉपी पे कर सकते हैं हम. वेरी गुड. आपकी मम्मा ने आपको बहुत अच्छी बात सिखाई है. हम नोटबुक पे भी कर सकते हैं, हम ऐसे फटाफट से भी कर सकते हैं. तो ये मैंने आपको फटाफट सिखाने के लिए ये मेथड, ये एक्टिविटीज हम करवा रहे हैं. ठीक है जी. नोटबुक पे तो आपको हम करवाते हैं जिस मेथड से, वो हम आपको वीडियो भेजते हैं ना, जो वीडियो में हम वर्क भेजते हैं वैसे आपने एग्जैक्ट वर्क वैसे ही आपने नोटबुक पे करना है. ठीक है. ओके ओके. नाउ 456 सेंटीमीटर्स. हाँ जी. फोर्थ क्वेश्चन इज 456 सेंटीमीटर्स. अगेन हम क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट्स को माइंड में रखेंगे कि वो हो गए सेंटीमीटर, है ना. जैसे लास्ट के 2 डिजिट है 56 मींस 56, तो वो सेंटीमीटर्स हो गए. 56 के बाद कौन सा डिजिट बचा, 4, तो वो मीटर्स का हो गया. दैट मीन्स वी हैव 4 मीटर्स एंड 56 सेंटीमीटर्स. अब अगर कोई आपको ऑरली पूछे 7460 सेंटीमीटर्स को मीटर्स और सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करो, तब आप वहां नोटबुक लेकर थोड़े बैठोगे सॉल्व करने. आप फटाफट से माइंड में क्या करोगे, लास्ट 2 डिजिट्स को लोगे, है ना, और उसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करोगे, और फटाफट से जो नेक्स्ट डिजिट है उसको मीटर में रखोगे और आप आंसर बता दोगे, है ना. सो बाय दिस प्रैक्टिस वी विल लर्न हाउ टू कन्वर्ट इनटू मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स. वेरी गुड. All have given correct answer. Very nice. Very well done. Okay, so now I am going to show you 2 statements. Okay, you have to understand the statements and then I will ask some questions regarding, and you have to see these statements. You have to read these statements. Okay, I am not going to explain. ठीक है, मैं explain नहीं करूंगी ये. आपने खुद से रीड करनी है. रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट. ओके, रीड इट and then I will ask any child, any student, I will ask from any students what is the meaning of this statement. जल्दी से रीड करो, अंडरस्टैंड करो कि मैंने ये क्या लिखा है. नंबर 1 पे, if length of one piece of cloth is 4 meters and 50 centimeters and length of second piece of cloth is 2 meters and 40 centimeters, what is the total length of both pieces of cloth? Okay, so now I'm going to ask from Kride. Kride, unmute yourself. Yes, ma'am. Okay, beta. Tell me what is written in first statement. आपने हमें समझाना है. फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है? What is the meaning of first statement? हाँ जी. If length of one piece of cloth and 4 meters 50 centimeters. हाँ जी. 40 centimeters. What is the total length of both pieces of cloth? हाँ जी, बताइए क्या मतलब हुआ इस स्टेटमेंट का? मैम एक पीस की एक लेंथ, क्लॉथ की लेंथ है 4 meters and 50 centimeters
वेरी और गुड, दूसरे पीस की लेंथ है 2 meters and 40 सेंटीमीटर। centimeters. हाँ जी, एंड व्हाट इज आस्क्ड, हमसे पूछा क्या गया है? Total. हाँ, व्हाट इज द टोटल लेंथ, है ना? सो हाउ वुड वी गेट Yes. टोटल लेंथ? हमें टोटल लेंथ कैसे मिलेगी? मैम प्लस करके. वेरी गुड, वेरी नाइस। सो इन दिस वे वी विल डू स्टेटमेंट सम्स। ऐसे ही आपको सिंपल सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं, आपने उसमें स्टेटमेंट लिखने होता है आंसर्स में, है ना? और आपने उसको देखना है कि अगर हमें टोटल मांगी है लेंथ तो हमने प्लस करना है, अगर हमें पूछा है कि कुछ कोई कट किया है लेंथ किसी एक पीस में से, फिर कितनी लेंथ लेफ्ट बच गई है, तब हमने माइनस करना होता है ना? तो अब हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। ओपन योर नोटबुक्स, ओके, एंड राइट द स्टेटमेंट। कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट? लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू, वैसे ही मीटर सेंटीमीटर टॉप पे लिखेंगे, जैसे हम मनी के सम्स में करते थे, रुपीज और पैसा टॉप पे लिखते थे, है ना? Please wait. Excuse me, ma'am. यस, मैम हम मीटर और सेंटीमीटर में नंबर ऑफ लगा सकते हैं? नो बेटा, इसमें नंबर्स नहीं दिए, इसमें लेंथ दी है ना? इसमें ये थोड़ा बोला है कि हमारे पास कितने क्लोथ है। नंबर तो हम तब लिखेंगे ना अगर हमें बताया गया हो कि देयर आर 6 पीसेस ऑफ क्लोथ्स, तब हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ क्लोथ्स, है ना? लेकिन यहाँ पे तो लेंथ बताई है, लेंथ बताई है तो हमें लेंथ लिखनी पड़ेगी ना। लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस ऑफ क्लोथ, फिर ऐसे ही हम नीचे लिखेंगे लेंथ ऑफ सेकेंड पीस ऑफ क्लोथ। यस, मैम हम ये लिखेंगे लेंथ ऑफ वन पीस ऑफ क्लॉथ। बिल्कुल यही बोला है अभी। ओके मैम। फिर हम सेकेंड लाइन में लिखेंगे लेंथ ऑफ सेकेंड पीस ऑफ क्लोथ, है ना? और थर्ड लाइन में आ जाएगी टोटल लेंथ, और ऐड करके जो हमारे पास आ जाएगा वो होगी टोटल लेंथ। और आंसर्स में हमने ऐसे ही लिखना है, आंसर इज इक्वल टू जो हमारे पास टोटल आया है वो लिख देना है, साथ में यूनिट्स लिख देना है, मीटर सेंटीमीटर्स लिख देना है, ठीक है? नाउ ऐड योर नोटबुक। यस, ये लिखना है वन पीस ऑफ क्लॉथ। लेंथ ऑफ वन पीस ऑफ क्लोथ, क्योंकि हमें लेंथ गिवन है, हमें स्टेटमेंट में बताना है ना कि हमें क्या गिवन है, कौन सी चीज हमें गिवन है। ओके मैम। Write the answer in the chat box. Total length. Write total length in the chat box. Very good. Mahin, Guntej, Abhav, Vardhan have written total length. Sargun also. Niharika, Sahib Jyot, Jasroop, Nirmit, भावेश, अनाहत, जपलीन, साहिबप्रीत, हर्षप्रीत, मान्या, हितांशी, आयुष्मान, राध्या, धनकौर, निहार, अंशिका, अमृत, all have given correct answer. Mahiraj, Shaurya, good. I hope you all have solved this sum. Now, second sum आपने solve नहीं करना है, आपने मुझे ऐसे ही आपने name लिखना है chat box में, answer आपने chat box में लिखना है. First of all, read the statement and understand it. Rohan is 4 meter 60 centimeters tall. मतलब रोहन की हाइट कितनी है? 4 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर. एंड मोहन इज 3 meters 50 सेंटीमीटर टॉल. और मोहन जो है उसकी हाइट कितनी है? 3 meters 50 सेंटीमीटर. हु इज टॉलर देन द अदर? टॉलर हमने कंपैरेटिव डिग्री लगाई है, कंपैरिजन करना है इनकी हाइट का, और हमने बताना है कि कौन टॉलर है.
Navya has written Rohan. Mahin has written Rohan is tall, नहीं taller, क्योंकि हमने कंपैरिजन किया है ना, विल यूज कंपैरेटिव डिग्री. रोहन, रोहन, रोहन. अच्छा जी, सबने रोहन लिख दिया है. रोहन इज टॉलर, है ना? अकॉर्डिंग टू यू रोहन इज टॉलर. ओके, कैन यू टेल मी? गुड. हर्षप्रीत has written Rohan. Jasroop. मैम मेरा हर्षिता, आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा. फर्स्ट सब नहीं किया है तो अब मेरा फर्स्ट वाला तो बेटा स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पे ही है, आप कर सकते हो अभी भी. रोहन इज टॉलर. साहिब, भावेश, अंशिका, अमृत बंधु. कैन यू राइट द रीजन? आपको कैसे पता चला कि रोहन है टॉलर? कैन यू राइट द रीजन? नंबर से Okay, Sanvi, unmute yourself and tell me, how did you know that Rohan is taller? Good morning, Good morning. ma'am. Because Rohan is 4 meter and 60 centimeter, and then the Mohan is 3 meter and 50 centimeter. So Rohan is taller than Mohan. How? कैसे पता चला आपको? Ma'am, because हाँ जी. Rohan has height. Rohan is रोहन की हाइट 4 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर है और मोहन हाइट 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर है. हाँ जी बेटा, पहले आपने इंग्लिश में बोली ये लाइन करेक्टली, अब हिंदी में बोल दी. बट मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको कैसे पता चलेगा? आपको कैसे पता चला? बिकॉज 4 meters इज ग्रेटर देन 3 meters, है ना? 4 meters 3 meters से ज्यादा होता है ना, इसलिए हम. हाँ, yes, समृद्धि has written correct answer. 4 meters 60 centimeter is greater than 3 meters 50 centimeters. And by subtracting also, some students are writing by subtracting. बेटा by subtracting हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन टॉल है, कौन टॉलर है, कौन मतलब टॉलर है और कौन टॉलेस्ट है. ठीक है, हमें क्या पता चलेगा? बाय सब्ट्रैक्टिंग तो हमें पता चलेगा कि वो कितनी हाइट उसकी ज्यादा है दूसरे से, है ना? अब जैसे हमें पता चला रोहन इज टॉलर, है ना? अगर अब मैं आपसे पूछूं कि उसकी कितनी हाइट ज्यादा, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर हाइट्स, ठीक है, उनकी हाइट्स में कितना डिफरेंस है, वो हमें कैसे पता चलेगा? हाउ वुड वी नो? राइट इन चैट बॉक्स. आपको कैसे पता चलेगा अब इनकी हाइट्स में डिफरेंस कितना है? सपोज आप हो, है ना, फिर आपकी कुछ यंगर ब्रदर सिस्टर भी है सबके, है ना, या आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर है ना, आपकी हाइट्स में डिफरेंस होता है ना, लेंथ में डिफरेंस होता है ना. आपके अगर आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर है तो वो आपसे लंबे हैं, अगर आपके छोटा है तो वो आपसे छोटे होंगे. तो आप उसमें डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करोगे? आप क्या लोगे? आप अपनी लेंथ, अपनी हाइट को लोगे, है ना, और आप अपने ब्रदर सिस्टर की हाइट को लोगे, और जिसकी हाइट ज्यादा है, जैसे यहाँ पे रोहन की हाइट ज्यादा है ना, तो उसमें से जिसकी कम है हाइट उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. यस, एंड देन वी विल गेट द डिफरेंस. पालिका हैज रिटन डिफरेंस 1 meter 10 centimeters. तो रोहन और मोहन की हाइट्स में कितना डिफरेंस है? 1 meter 10 centimeters. ठीक है, सो बाय लेंथ, इसी लेंथ चैप्टर से ही हमें डिफरेंस पता चलता है. गॉट इट? तो लेंथ हमें लेंथ जो टॉपिक है, जो ये लेंथ है, कंसेप्ट मीटर सेंटीमीटर्स, एक तो हम क्लोथ्स की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, एनीथिंग, किसी भी चीज की लेंथ फाइंड, और इवन हमारी हाइट, जो हमारी हाइट है उसकी भी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं. मेरा हाल बाद में
मेरे पेन के बिचला है पापा, तेरे पे Okay. So now बिचला everyone has given correct answer in the chat box. 1 meters 10 centimeters. Now you got ना कि हमें 1 meter 10 centimeters कैसे मिला? By subtracting. ठीक है? रोहन की हाइट ज्यादा थी, उसकी हाइट से हमने मोहन की हाइट को सब्ट्रैक्ट किया, तब हमें दोनों की हाइट का डिफरेंस पता चला. ठीक है? 1 meter 10 centimeters. Good. So I hope you enjoyed today's activity, and now let's revise previous concepts of time also. So I am going to show you one pic. Here you can see one clock and you have to write the time in chat box. जल्दी से time लिख दीजिए chat box पे. What is the time by this clock? Very good. Harshpreet has written. Sahib Preet, Sahib Jot, Mahiraj, Nirmit. Very nice. All have given correct answer. So that's all from my side. I hope all the concepts related to length are clear now. Thank you so much.